Today we have physical inventory process. Now, what is physical inventory process and why the physical inventory process is carried out? So, physical inventory process is carried out basically for two reasons. First is to correct the stock quantities so that our MRP results will be correct. The second reason is companies need to report their existing inventories. For that reason also, physical inventory process carried out so that the correct inventories are reported. So what is physical inventory process? So as the name suggests, physical inventory. So the physical inventory is carried out to calculate physical quantities of the inventory. Whatever materials we have in our plant, for all those materials, how much is the exactly quantities are present physically of the materials, that is calculated in this process. So for example, a material XYZ is having system stock. Suppose I have two plants, plant 1 and plant 2. Inside plant 1, I have 1000 quantities, and inside plant 2, I have 500 quantities. Now this 1000 is total of unrestricted quality R block, because I'm considering only plant here, and here also I'm considering 500. So it may happen in this plant we have multiple storage locations, and sum of all those storage location stock is 500, and in this case sum of all storage location stock is 1000 quantities. So this is system stock. So when I say system stock means in SAP system I can see in plant PL01 I have 1000 quantities, in plant PL02 I have 500 quantities for this material XYZ. Now this is system stock. Means in SAP, I can see in plant 01, 1000 quantities are present. So does this system stock match with my physical stock quantities? Physical stock means in system, if I'm seeing 1000 quantities in plant 01, physically, how much quantities are actually present in plant PL01? So in plant PL01, suppose there are two storage locations, SL01 and SL02. In SL01, I see 400 quantities. In SL02, I see 600 quantities. Now, physical stock means I'll go to storage in plant PL01. I'll go to storage location SL01 and I'll count the quantities of this material XYZ in SL01. So, physically, I count each and every quantity of XYZ. So, that is what is my physical stock. So, if I count and if I get to know that here only 380 quantities are present, and in SL02 suppose I found 600,
So what is happening here? So in SL02, 600 quantities are there in system and 600 quantities are there in physically. So physically I found 600, in system also I have 600. So my inventory is matching in this case. I don't have any issue here. But if I consider this, what is happening? In system, I have 400 quantities, but physically I found only 380 quantities. Physically मुझे सिर्फ 380 मिला. इसका मतलब 20 quantities are missing. So if I count, if I do the total, here I can see in system 1000 quantities, but here I can only see 980 quantities at plant level. So at plant level, 20 quantities are missing. So if these 20 quantities are not found, then we post the difference of these 20 quantities in the system, and after we post the difference, here it will be 980 and it will be 980. So the result of physical inventory will correct the system quantity as per the physical quantities. So after physical inventory difference is posted, system stock is corrected as per physical stock quantities, so that your system stock and physical stock quantities matches. और अगर दोनों मैच होते हैं तो जो हम एमआरपी रन करेंगे तो हमारे एमआरपी के जो रिजल्ट्स है वो एक्यूरेट होंगे. अगर सिस्टम स्टॉक और फिजिकल स्टॉक मैच नहीं करता है तो हमारा जो एमआरपी का रिजल्ट है दैट विल नॉट बी करेक्ट. एमआरपी सिस्टम के हिसाब से ऑर्डर करेगा, बट फिजिकली कुछ और ही क्वांटिटीज हमारे पास है, तो एक्चुअल जब उस क्वांटिटीज को हम यूटिलाइज करेंगे तो वहां पे डिफरेंसेस आने के चांसेस होते हैं. क्लियर? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? सो इट मे हैपन कि सिस्टम में 400 क्वांटिटीज है और फिजिकली हमको यहाँ पे 450 मिला. दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. सो 50 क्वांटिटीज का अगेन यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है. तो अगेन the things are verified and after that the difference is posted. तो डिफरेंस पोस्ट होगा तो यहाँ पे सिस्टम का स्टॉक 450 किया जाएगा. टोटल स्टॉक विल बिकम 1050 और यहाँ पे भी 1050 रहेगा. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड एज फिजिकल इन्वेंटरी प्रोसेस. तो फिजिकल इन्वेंटरी प्रोसेस में फिजिकली हर एक मटेरियल का क्वांटिटी काउंट किया जाता है और उसको सिस्टम के स्टॉक के साथ कंपेयर किया जाता है. If the quantities found are less than the system stock, then that is a loss from physical inventory. अगर हमको सिस्टम में ज्यादा क्वांटिटी है, फिजिकली कम मिला, तो इसका मतलब उतना क्वांटिटी मिसिंग है. दैट इज आवर लॉस फ्रॉम फिजिकल इन्वेंटरी. अगर फिजिकली हमको ज्यादा क्वांटिटी मिलता है, सिस्टम में कम है, तो दैट इज गेन फ्रॉम फिजिकल इन्वेंटरी. फिजिकल इन्वेंटरी से वो गेन हो गया. ठीक है. सो at the end of physical inventory process, either we can have a loss from physical inventory or we can have a gain from physical inventory. And as a result of physical inventory, the stocks are corrected. System stock and physical stock will be in sync after the physical inventory process. Clear? Any doubt? Now we will see the steps in carrying out physical inventory process. The first step
in physical inventory process is to create physical inventory document, also called as PI document. Second is enter count. And third is verify and post differences. To create physical inventory document, the transaction code is MI01. To change MI02, to display MI03. To enter count MI04, to change count MI05, to display count MI06, and to post a difference MI07. Create, change, display. Okay. Now there is something called stock inventoried units or inventory units in which we can carry out the physical inventory process. मतलब फिजिकल इन्वेंटरी जो है हम किस लेवल पे कैलकुलेट कर सकते हैं. फिजिकल इन्वेंटराइड यूनिट्स कैन बी योर मटेरियल, मतलब एक मटेरियल का हम क्वांटिटीज काउंट कर सकते हैं इन ऑल द प्लांट्स, इन ऑल द स्टोरेज लोकेशंस. प्लांट लेवल पे हम कैरी आउट कर सकते हैं, स्टोरेज लोकेशन पे हम कैरी आउट कर सकते हैं, स्टॉक टाइप्स पे कैरी आउट कर सकते हैं. मतलब एक मटेरियल का एक प्लांट में, एक स्टोरेज लोकेशन में सिर्फ अनरेस्ट्रिक्टेड का ही हमको अगर फिजिकल इन्वेंटरी करना है तो हम कर सकते हैं. एक मटेरियल का एक प्लांट में हमको फिजिकल इन्वेंटरी करना है, हम कर सकते हैं. स्टोरेज लोकेशन पे किसी स्पेसिफिक स्टोरेज लोकेशन का ही क्वांटिटीज हमको काउंट करना है, हम कर सकते हैं. स्पेशल स्टॉक्स लाइक सब कॉन्ट्रैक्टिंग, इंडिकेटर ओ और कंसाइनमेंट इंडिकेटर के, इनका भी हम फिजिकल इन्वेंटरी कैरी आउट कर सकते हैं. तो फिजिकल इन्वेंटरी कैरी आउट मटेरियल लेवल पे भी किया जा सकता है, प्लांट लेवल पे किया जा सकता है, पर्टिकुलर स्टोरेज लोकेशन पे किया जा सकता है, स्टॉक टाइप पे किया जा सकता है, अनरेस्ट्रिक्टेड क्वालिटी एंड ब्लॉक एंड स्पेशल स्टॉक्स पे भी किया जा सकता है. सो वी विल सी नाउ इन सिस्टम how to carry out the physical inventory process. Any doubt, any question? Clear, sir. Yes. Now, let me display any material. Now for this material, we have these many stocks. Now, if I want to carry out physical inventory for this material in plant AGP1, storage location 1000. Okay, so I am going to carry out the physical inventory process for this material in plant AGP1, storage location 1000. So the first step will be we will create a physical inventory document. Transaction code is MI01. Okay. Now, document date is the date when we are
क्रिएटिंग दिस फिजिकल इन्वेंटरी डॉक्यूमेंट। हम जिस दिन फिजिकल इन्वेंटरी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं उस दिन का जो डेट है दैट इज योर डॉक्यूमेंट डेट। प्लान्ड काउंट डेट, नाउ दिस इज द डेट when we will carry out the physical count of the inventory। planned count date, तो फिजिकल इन्वेंटरी प्रोसेस जो है अलग अलग प्रकार का होता है। लाइक फॉर एग्जांपल एनुअल फिजिकल इन्वेंटरी, तो मैक्सिमम कंपनीज हर साल एनुअली मतलब हर साल फिजिकल इन्वेंटरी प्रोसेस को कैरी आउट करता है। तो आपने सुना होगा बड़ी बड़ी कंपनीज जो है उनका मेंटेनेंस शटडाउन वगैरह होता है, या जो शटडाउन लिया जाता है उसका पर्पस ये भी होता है कि फिजिकल इन्वेंटरी भी हो और मेंटेनेंस भी साथ में किया जाए। ठीक है, तो फिजिकल इन्वेंटरी प्रोसेस जब कैरी आउट करना होता है तो कंपनी में सिर्फ एक मटेरियल तो नहीं होता, हजारों मटेरियल्स होते हैं। तो हजारों मटेरियल्स का अगर फिजिकल इन्वेंटरी प्रोसेस करना है तो टाइम लगता है। सो दे विल प्लान फर्स्ट। सो फिजिकल इन्वेंटरी के डॉक्यूमेंट जो हैं पहले क्रिएट किए जाते हैं, एंड प्लान्ड काउंट डेट कैन बी अ लेटर डेट। तो मतलब आज अगर हमने डिसाइड किया है कि फिजिकल इन्वेंटरी कैरी आउट करना है तो काउंटिंग कब होगा एक्चुअली, दैट डेट मे बी अ फ्यूचर डेट, और आज का भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन। तो document date or planned count date. So planned count date is the date when the actual physical counting of the material will be carried out. तो planned count date का जो importance यहाँ पे है that is to record the posting period of the inventory. For example अगर मैं यहाँ पे planned count date आज का डालता हूँ तो इसका जो डिफरेंस है, जो भी डिफरेंस आएगा वो पोस्ट इसी पीरियड में हमको करना चाहिए। पीरियड इज 07। सो पीरियड क्या होता है, मंथ इन विच यू वांट टू पोस्ट द इन्वेंटरी वैल्यूज। हमने पोस्टिंग पीरियड्स देखे हैं फाइनेंस के, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। अगर अप्रैल टू मार्च हमारा फाइनेंशियल ईयर है तो अप्रैल इज आवर फर्स्ट पीरियड एंड मार्च इज आवर 12th पीरियड। तो उस मंथ का इन्वेंटरी उस मंथ में हमको पोस्ट करना होता है। तो व्हेन वी एंटर द प्लान्ड काउंट डेट वी आर बेसिकली टेलिंग सिस्टम कि उसका पोस्टिंग कौन से पीरियड में होना है। तो यहाँ पे जन टू दिसंबर इज द पोस्ट फाइनेंशियल पीरियड, तो जुलाई इज द करंट पोस्टिंग पीरियड। तो सिस्टम काउंट डेट से पोस्टिंग पीरियड लेता है कि कौन से पीरियड में उसका डिफरेंस पोस्ट किया जाता है, क्योंकि अगर इन्वेंटरी में डिफरेंस है तो उसका डिफरेंस हमको पोस्ट करना पड़ेगा। सो व्हेन वी पोस्ट द डिफरेंस पोस्टिंग्स टू स्टॉक अकाउंट्स टेक्स प्लेस, अभी हम देखेंगे। तो वो पोस्टिंग जो है वो कौन से पीरियड में होना है दैट इज डिटरमाइंड फ्रॉम द प्लान्ड काउंट डेट। तो मैंने यहाँ पे 30th ऑफ जुलाई ही रखा। प्लांट AGP1, स्टोरेज लोकेशन 1000 यूज किया मैंने यहाँ पे। अगर स्पेशल स्टॉक लाइक सब कॉन्ट्रैक्टिंग कंसाइनमेंट है तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। पोस्टिंग ब्लॉक फ्रीज बुक इन्वेंटरी we will see after some time. For now we will not select any of these indicators. फिजिकल इन्वेंटरी नंबर, आप जो पूरा फिजिकल इन्वेंटरी कैरी आउट करने वाले हो सब मटेरियल्स के लिए, उसके लिए अगर आपको कोई यूनिक नंबर देना है तो यू कैन एंटर दैट एज फिजिकल इन्वेंटरी नंबर। फिजिकल इन्वेंटरी रेफरेंस अगेन सेम थिंग, उसमें अगर आपको कुछ रेफरेंस नंबर डालना है तो आप डाल सकते हो। एंड द नेम ऑफ पर्सन हु इज creating this physical inventory document you can enter here if you want to record that person's name. Now once you enter these details like document date, count date, plant, storage location, you can enter. Now on this screen you can add the materials. You can add the materials means you can create the physical inventory document for one single material, or you can add multiple materials also if you are, because in this plant in this storage location you may have hundreds of materials stored। तो सबका अगर एक ही डॉक्यूमेंट के साथ आपको फिजिकल इन्वेंटरी कैरी आउट करना है तो आप यहाँ पे एक के बाद एक ऐसे मटेरियल्स डाल सकते हो। यहाँ पे 15 है, आपने 15 पेस्ट किए, अगेन 15 सिस्टम आपको
एंट्री के लिए अवेलेबल कर देगा, वो सिस्टम रिकॉर्ड करेगा और अगेन 15 एंट्रीज यू कैन एंटर हियर। तो आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करते जाना है, या यू कैन मेक यूज ऑफ दिस नेक्स्ट पेज टू एंटर द मटेरियल्स। तो द थिंग इज प्लांट AGP1 स्टोरेज लोकेशन 1000 के ही मटेरियल्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर कोई मटेरियल है प्लांट AGP1 में है, स्टोरेज लोकेशन 2000 में है, बट 1000 में वो एक्सटेंडेड नहीं है, यू कैनॉट एंटर हियर, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ हम प्लांट AGP1 और स्टोरेज लोकेशन 1000 के ही मटेरियल्स ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक मटेरियल डालेंगे पहले, जिसको इसमें एक्सेल से कॉपी पेस्ट पॉसिबल है क्या, यही फॉर्मेट में एक्सेल बना के? यस कर सकते हैं। अगर मटेरियल बैच मैनेज्ड है तो कोई पर्टिकुलर बैच ही हमको काउंट करना है, तो वहां पे हम बैच नंबर भी डाल सकते हैं, ठीक है। देन दिस इज स्टॉक टाइप, कौन से स्टॉक टाइप को हमको काउंट करना है। सो वेयर हाउस इज नथिंग बट आवर अनरेस्ट्रिक्टेड स्टॉक क्वांटिटीज, क्वालिटी इंस्पेक्शन स्टॉक टाइप, वेयर हाउस क्वालिटी इंस्पेक्शन एंड ब्लॉक्ड। तो अनरेस्ट्रिक्टेड में करना है, क्वालिटी में करना है, ब्लॉक में करना है, दैट वी कैन सिलेक्ट हियर। सो आई एम सिलेक्टिंग हियर 1 मींस अनरेस्ट्रिक्टेड। क्या है ये, डिटरमाइन बैचेस फॉर फिजिकल इन्वेंटरी। अगर बैच मैनेज्ड है तो ये हम इंडिकेटर सिलेक्ट कर सकते हैं, और ये इंडिकेटर है हैंडलिंग इन अल्टरनेट यूनिट्स ऑफ मेजर। अगर इस मटेरियल के लिए अल्टरनेट यूनिट्स ऑफ मेजर है तो ये चेक बॉक्स हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अल्टरनेट यूनिट ऑफ मेजर मतलब जिसका बेस यूनिट अगर ईच है, बट हमने फिजिकल इन्वेंटरी में देखा था कि उसका इशू यूनिट कुछ अलग है, या गुड्स इशू यूनिट अलग है, या फिर प्रोडक्शन यूनिट अलग है, या फिर परचेस ऑर्डर यूनिट अलग है, दैट इज नथिंग बट द अल्टरनेट यूनिट्स ऑफ मेजर। एंटर किया हमने इसको, और हमने नाउ यू सी एज सून एज आई एंटर्ड दैट मटेरियल इज डिसअपीयर्ड फ्रॉम हियर। तो उसको सिस्टम ने ले लिया और यहाँ पे एक और रो ऐड कर दिया, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे 15 मटेरियल्स को पेस्ट किया, एंटर किया, तो 15 मटेरियल्स को सिस्टम ले लेगा, 16 से स्टार्ट होगा, 30th तक यहाँ पे आपको और मटेरियल्स इनपुट करने के लिए स्क्रीन रेडी हो जाएगा, ठीक है। नाउ आई विल सेव दिस। सो एज सुन एज आई सेव दिस, system will create a number and assign it to the document. So physical inventory document 10019 is created. So this document number is called as physical inventory document number. Okay, so physical inventory document is created. Now let us display this physical inventory document. Transaction code will be MI03. Enter. Now you can see here we have added this material. Description of the material, stock type is 1, plant AGP1, storage location 1000. Let us go to its header details. You can see plant storage location, plant count date that we entered, document date that we entered, created by username, and the transaction slash event type IB physical inventory document. So जैसे PO का डॉक्यूमेंट टाइप होता है, NB PR का डॉक्यूमेंट टाइप होता है, वैसे फिजिकल इन्वेंट्री का ये डॉक्यूमेंट टाइप है। तो इसको जो नंबर असाइन हुआ 10019, दैट इज असाइंड बेस्ड ऑन दिस IB डॉक्यूमेंट टाइप, ठीक है। तो इसके सेटिंग्स हम नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे, जहां पे वी विल सी हाउ द नंबर्स आर असाइंड टू फिजिकल इन्वेंट्री डॉक्यूमेंट। नाउ हियर यू कैन सी posting period, count status, adjustment status, and delete status. So when we enter the count, the posting period will be updated here. काउंट का स्टेटस यहाँ पे अपडेट होगा कि इसका फिजिकल इन्वेंटरी काउंट हुआ है या नहीं हुआ है। अभी यहाँ पे क्या है, ये ब्लैंक है, बिकॉज वी हैव ओनली क्रिएटेड द फिजिकल इन्वेंटरी डॉक्यूमेंट। अभी तक हमने इसका काउंट नहीं किया है, ना हमने इसका डिफरेंस पोस्ट किया है। तो जैसे जैसे हम नेक्स्ट स्टेप्स करेंगे, ये डेटा यहाँ पे अपडेट होगा। जैसे काउंट डेट भी अपडेट होगा, पोस्टिंग डेट भी
अपडेट होगा। काउंट डेट कब अपडेट होगा? जब हम काउंट एंटर करेंगे तब। सो काउंट डेट इज व्हेन द काउंट हैज हैपेंड। काउंट आपने कब लिया, वो डेट काउंट डेट में अपडेट होगा। पोस्टिंग डेट इज व्हेन द पोस्टिंग हैपेंड। हमने अगर डिफरेंस पोस्ट किया तो वो पोस्टिंग डेट में पोस्टिंग डेट अपडेट हो जाएगा। गो टू ओवरव्यू। अगेन यहाँ पे हमको डिटेल्स देखेंगे। नाउ यू गो टू फिजिकल इन्वेंटरी हिस्ट्री and here you can see the physical inventory status, and the physical inventory status is not yet counted। ठीक है, तो जब हम फिजिकल इन्वेंटरी प्रोसेस का डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, सो व्हेन द डॉक्यूमेंट इज ओनली क्रिएटेड, द स्टेटस ऑफ फिजिकल इन्वेंटरी इज not yet counted। So physical inventory document is created, उसका जो स्टेटस है, the status updated is not yet counted। अभी तक इसका काउंट नहीं हुआ है। फिजिकल इन्वेंटरी डॉक्यूमेंट इज क्रिएटेड बट इट इज नॉट yet counted। दैट इज व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द फिजिकल इन्वेंटरी document। Now we will proceed to enter count against this physical inventory document। So entering count means the person who is supposed to count physically this material in this plant and this storage location will go to that storage location and count the quantities in that storage location। स्टोरेज लोकेशन में वो जाएगा और फिजिकली वो क्वांटिटीज को काउंट करेगा। कहाँ पे? अनरेस्ट्रिक्टेड यूज स्टॉक में कितना क्वांटिटी है, बिकॉज हमने अनरेस्ट्रिक्टेड यूज को हमने सिलेक्ट किया हुआ है। नाउ यू सी हियर 750 क्वांटिटीज आर प्रेजेंट इन स्टोरेज लोकेशन। नाउ देयर विल बी 2 केसेस, 3 केसेस। फर्स्ट केस 750 सिस्टम में है, फिजिकली उसको 750 मिल सकता है। सेकेंड केस सिस्टम में 750 है, फिजिकली उसको 730 ही मिला। थर्ड केस सिस्टम में 750 है, उसको फिजिकली 770 मिला। ठीक है, तो फर्स्ट केस में अगर उसको 750 ही मिला तो मेरा सिस्टम का स्टॉक और फिजिकल स्टॉक दोनों मैच हो रहे, सो देयर विल बी नो डिफरेंस। ठीक है, सो वी विल एंटर द अकाउंट, we will verify the difference, 0 difference will be there, okay, and we will post the difference। second case अगर 730 quantities मिला, सिस्टम का स्टॉक है 750, फिजिकली काउंट किया 730 आया, देयर इज 20 क्वांटिटीज डिफरेंस एंड इट इज इन माइनस, मतलब 20 क्वांटिटी मिसिंग है। सो दैट इज अ लॉस फ्रॉम फिजिकल इन्वेंटरी प्रोसेस। तो 20 क्वांटिटी नहीं मिला, तो जब हम काउंट एंटर करेंगे तो काउंट इज 730। फिजिकली मैंने कितना काउंट किया, दैट इज माय काउंट। तो 730 मेरा काउंट आया, 730 में सिस्टम में काउंट एंटर करूंगा, तो 20 क्वांटिटी का जो है वहां पे लॉस सिस्टम रिकॉर्ड करेगा। एंड व्हेन वी पोस्ट द डिफरेंस, 20 क्वांटिटी का हम डिफरेंस पोस्ट करेंगे। तो अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होगा, वी विल सी आफ्टर पोस्टिंग द डिफरेंस। और इस थर्ड केस में 20 क्वांटिटी ज्यादा मिला, सो दिस 20 क्वांटिटीज इज गेन फ्रॉम द फिजिकल इन्वेंटरी प्रोसेस। ठीक है, तो अभी हम पहले यहाँ पे काउंट एंटर करते हैं। ठीक है, तो MI03 में हम काउंट को फिजिकल इन्वेंटरी डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले करते हैं। अगर आपको चेंज करना है तो आप MI02 में जा सकते हो एंड यू कैन चेंज द फिजिकल इन्वेंटरी डॉक्यूमेंट। चेंजेस करने के लिए क्या क्या चेंज कर सकते हैं, हम काउंट डेट को चेंज कर सकते हैं,
हम फिजिकल इन्वेंटरी नंबर को अपडेट कर सकते हैं, रेफरेंस नंबर को या इस नेम को हम अपडेट कर सकते हैं. प्लांट एंड स्टोरेज लोकेशंस वी कैन नॉट चेंज इन द फिजिकल इन्वेंटरी चेंज डॉक्यूमेंट. ठीक है. Now I'll go to enter the count directly, MI04. Now in between there is one more step, that is printing of the physical inventory document. तो यहाँ पे जो फिजिकल इन्वेंटरी डॉक्यूमेंट को क्रिएट किया जाता है उसके बाद उसको प्रिंट भी किया जा सकता है. सो प्रिंट का जो ट्रांजेक्शन है दैट इज MI20, आई गेस 20 है या 21 है, लेट मी सी वंस. MI21 is the transaction code to print the physical inventory document. तो क्यों प्रिंट किया जाता है? तो जो यूजर वेयरहाउस में जाके काउंटिंग लेने वाला है, अभी तो हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही मटेरियल का एग्जांपल लिया है. सपोज वो स्टोरेज लोकेशन में 50 मटेरियल है, राइट? तो वो इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करेगा, तो उस प्रिंट पे उसको वो 50 डॉक्यूमेंट्स, सॉरी 50 मटेरियल के नंबर दिखेंगे. सो लेट मी प्रिंट दिस फिजिकल इन्वेंटरी डॉक्यूमेंट दैट वी हैव क्रिएटेड. Document number is 10019, plant AGP1, storage location 1000. Execute it. Let me add here LP01. This is standard. Okay, SAP standard. Printer LP01 आप यहाँ पे डाल के इसको प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो हमको यहाँ पे ऐसे दिखता है. तो इसको प्रिंट करने के बाद ये ऐसा दिखेगा. So this document will have the information कि हम कौन से प्लांट में जाके काउंट करने वाले हैं, फिजिकल इन्वेंटरी डॉक्यूमेंट नंबर है, कौन से यूजर ने इस डॉक्यूमेंट को क्रिएट किया है, काउंट डेट क्या है, फिजिकल इन्वेंटरी का रेफरेंस, फिजिकल इन्वेंटरी नंबर अगर हमने डाला होता तो वो भी यहाँ पे डिस्प्ले होता. मटेरियल, ये मटेरियल है, इसका स्टेटस है नॉट एट काउंटेड. स्टोरेज लोकेशन नंबर, स्टॉक टाइप स्टोरेज लोकेशन 1000, स्टॉक टाइप अनरेस्ट्रिक्टेड में हमको इसको काउंट करना है. और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक लाइन है और यहाँ पे उसका यूनिट भी है उस मटेरियल का, बेस यूनिट ऑफ मेजर. तो वो जब जाके इस मटेरियल को फिजिकली काउंट करेगा, ही कैन एंटर दैट काउंट ऑन दिस पेपर. अगर 50 मटेरियल है, 50 मटेरियल का वो काउंट कर रहा है, बट ही इज नॉट नोटिंग समवेयर हाउ ही इज गोइंग टू एंटर द काउंट और हाउ ही इज गोइंग टू रिमेंबर द काउंट. सो फॉर दैट पर्पज द फिजिकल इन्वेंटरी डॉक्यूमेंट इज प्रिंटेड. उसका प्रिंट आउट लेके वो वेयरहाउस में जाएगा, फिजिकली वहाँ पे हर एक मटेरियल को काउंट करेगा. जैसे ही पहले मटेरियल का काउंट खत्म होगा वो उसको नोट करेगा पेपर पे. सेकेंड मटेरियल पे जाएगा, काउंट करेगा, नोट करेगा. थर्ड पे जाएगा, काउंट करेगा, नोट करेगा. एंड when the counting is completed, he will take that paper, go to his desktop, and then he will enter the count in system. ये प्रोसेस होता है. तो फिजिकल इन्वेंटरी डॉक्यूमेंट को प्रिंट भी किया जा सकता है. तो प्रिंट लेगा, वेयरहाउस में इस स्टोरेज लोकेशन पे जाएगा, अनरेस्ट्रिक्टेड यूज में 750 क्वांटिटीज है, वो काउंट करेगा. मान लो काउंट का रिजल्ट आया 730. नाउ ही विल गो टू हिज डेस्कटॉप, लॉग इन इनटू सिस्टम, go to transaction code MI04, enter inventory count. He will enter the physical inventory document number and enter. So once he enters, now he has a field here to enter the count. Physically कितना count हुआ वो यहाँ पे हम quantity enter कर सकते हैं. So if count is 730, I will enter here 730. This checkbox is for zero count ZC. मतलब क्वांटिटी मिला ही नहीं, जीरो क्वांटिटी है, तो हम यहाँ पे जीरो नहीं डालेंगे. वी विल सिलेक्ट हियर जीरो काउंट. ओके, सो वी कैन नॉट एंटर जीरो, वी नीड टू सिलेक्ट हियर जीरो काउंट अगर क्वांटिटी जीरो है तो. सो यहाँ पे मैंने 730 काउंट डाला, एंटर किया, एंड आई विल सेव दिस. सो काउंट एंटर फॉर फिजिकल इन्वेंटरी डॉक्यूमेंट. काउंट एंटर किया हमने. नाउ आई विल डिस्प्ले दी physical inventory document again, MI06, to display the count that is entered. And here you can see now counted quantity we have entered 730.
Now go to header data and check the header data. Now here you can see plant count date is updated. जब फिजिकल इन्वेंटरी डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था तब ये ब्लैंक था, ए भी ब्लैंक था, ए भी ब्लैंक था, ए भी ब्लैंक था. अभी ये अपडेट हो गया. सो प्लान काउंट डेट जिस दिन हमने प्लान किया था वो ए डेट था. काउंट डेट मतलब काउंटिंग कब हुआ, सिस्टम में हमने काउंट कब एंटर किया, दैट इज काउंट डेट. तो आज हमने एंटर किया तो काउंट डेट अपडेट हो गया. डॉक्यूमेंट डेट ये तो ऑलरेडी अपडेटेड था. पोस्टिंग पीरियड, तो इसका डिफरेंस कौन सी पीरियड में पोस्ट होना चाहिए, 2023-07, सो करंट मंथ. काउंट स्टेटस इज फ्लैग्ड एज एक्स, मतलब काउंट कंप्लीट हुआ, हमने काउंट एंटर किया. अगेन गो टू डॉक्यूमेंट ओवरव्यू and click on physical inventory history. Select the line, click on physical inventory history. Now you can see the physical inventory status is updated as counted now. जब क्रिएट किया था तब नॉट एट काउंटेड था, हमने काउंट एंटर किया, द स्टेटस इज अपडेटेड टू काउंटेड नाउ. काउंट डेट अपडेट हुआ, किसने काउंट किया वो अपडेट हुआ. और यहाँ पे देखो सिस्टम ने क्वांटिटीज भी रिकॉर्ड कर लिया. बुक क्वांटिटी 750, सो बुक क्वांटिटी इज सिस्टम स्टॉक. सिस्टम का कितना स्टॉक था, 750 था. क्वांटिटी दैट इज काउंटेड, हमने काउंट कितना किया, 730 किया. एंड हियर यू कैन सी द डिफरेंस क्वांटिटी 20 माइनस 20 क्वांटिटी का यहाँ पे डिफरेंस है. क्लियर, एनी डाउट? Clear. So this is the status of physical inventory when we enter the count. एंटर काउंट करने के बाद फिजिकल इन्वेंटरी का जो स्टेटस है वो अपडेट हो जाता है. पहले क्या था, नॉट एट काउंटेड था, अभी क्या है, काउंटेड. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज पोस्ट डिफरेंस. नाउ डिफरेंस कब पोस्ट किया जाता है, तो जब काउंट लिया जाता है तो काउंट लेने के बाद हर एक मटेरियल के लिए काउंट का डिफरेंस देखा जाता है, कितना क्वांटिटी का डिफरेंस आ रहा है. अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा है, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है, डिफरेंस का क्वांटिटी ज्यादा है, तो उस क्वांटिटी के साथ वैल्यू भी होगा, तो इन्वेंटरी का वैल्यू का डिफरेंस भी उतना ही ज्यादा आएगा. तो बेस्ड ऑन वैल्यू एंड क्वांटिटी, किसी मटेरियल के लिए अगर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आ रहा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो रीकाउंट भी किया जाता है. तो रीकाउंटिंग का क्या प्रोसेस है, वी विल सी आफ्टर कंप्लीटिंग दिस. सो इफ वी आर नॉट गोइंग टू रीकाउंट, अगर डिफरेंस ओके है, विद इन द लिमिट है, टॉलरेट किया जा सकता है, तो डिफरेंस को एक्सेप्ट किया जाता है एंड पोस्ट किया जाता है. बट उसके पहले ये चेक किया जाता है मतलब अगर 5-10 क्वांटिटी इधर उधर है तो कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंस सिंपली एक्सेप्ट करके पोस्ट किया जाता है. बट अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा है, 100 क्वांटिटी मिसिंग है, उसका वैल्यू भी बहुत ज्यादा है, अगेन इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द मटेरियल एज वेल. ठीक है, तो ये पहले चेक किया जाता है कि कहीं और पे वो क्वांटिटी मिलेगा क्या फिजिकली. कहीं पे भी अगर नहीं मिल रहा है तो ये एक्सेप्ट किया जाता है कि इतना डिफरेंस है, क्वांटिटीज मिसिंग है, और वो डिफरेंस पोस्ट किया जाता है. सो व्हेन द डिफरेंस इज पोस्टेड, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिफरेंस पोस्टिंग, तो इसका मतलब ये एक्सेप्ट किया जाता है कि 20 क्वांटिटीज मिसिंग है एंड द स्टॉक्स आर एडजस्टेड. सो द रिजल्ट ऑफ फिजिकल इन्वेंटरी डॉक पोस्टिंग इज यू आर एक्सेप्टिंग द डिफरेंसेस. इसका मतलब 20 क्वांटिटी नहीं मिला तो 20 क्वांटिटी का लॉस वहां पे पोस्ट किया जाता है. सो व्हेन वी पोस्ट द लॉस ऑफ 20 क्वांटिटीज, मतलब सिस्टम का स्टॉक 20 क्वांटिटी से कम होता है, और जो स्टॉक अकाउंट का वैल्यू है वो 20 क्वांटिटी का,
वो भी स्टॉक से माइनस होता है, एंड दैट इज पोस्टेड टू फिजिकल इन्वेंट्री लॉस अकाउंट। ठीक है, नाउ वी विल post the difference for this document. Copy this document and go to MI07. Enter the document number, enter. Now here you can see difference quantity 20 and difference amount 3901. एक मिनट। Okay, so you can see here difference quantity is 20 and difference amount is 3901. तो सिस्टम ने अमाउंट भी यहाँ पे कैलकुलेट किया कि अगर हम ये डिफरेंस पोस्ट करेंगे तो कितना उसका वैल्यू होगा। How this value is calculated? This value is calculated based on the material master price. Quantity multiplied by material master value. अगर मूविंग एवरेज है तो मूविंग एवरेज, स्टैंडर्ड प्राइस है तो स्टैंडर्ड प्राइस, तो जो प्राइस होगा उस प्राइस के हिसाब से इसका स्टॉक का वैल्यूएशन होगा। So if I go to accounting data, AGP1 195.08 is my price in the material master record. So 195.08 into 20 quantities 3901.6, 3901.60 is my stock value that will be posted as a difference. Now here we need to select the reason. So this reason is mapped against the movement type. हमने देखा था लास्ट चैप्टर में जहाँ पे 122 को हमने रीजंस डिफाइन किए थे एंड वी यूज दैट। सो सेम वे फिजिकल इन्वेंट्री का जो मूवमेंट टाइप होता है उसको भी रीजन असाइन होता है। सो व्हेन वी सिलेक्ट हियर रीजन, इनडायरेक्टली वी आर सिलेक्टिंग द मूवमेंट टाइप टू पोस्ट दिस डिफरेंस। So the movement types used are 701 and 702. ठीक है, तो अगर लॉस है तो 701 होगा, गेन है तो 702 होगा। देखते हैं, आई हैव अ कंफ्यूजन, लेट मी सिलेक्ट हियर 01। ठीक है, तो ले लिया। सो 701 विल बी द मूवमेंट टाइप दैट विल बी पोस्टेड। तो रीजन में हमने क्या सिलेक्ट किया? 1। सो दीज रीजंस कैन बी डिफाइंड। ये रीजंस हम डिफाइन कर सकते हैं, स्टोलन, हिडन, थेफ्ट या फिर मिसिंग। ठीक है, जो भी क्वांटिटी, जो भी फिजिकल इन्वेंटरी प्रोसेस के रीजंस हो सकते हैं, दैट रीजंस कैन बी कस्टमाइज्ड। वो हम कॉन्फ़िगरेशन में डिफाइन कर सकते हैं और वो हम मूवमेंट टाइप को असाइन कर सकते हैं। वी कैन यूज दोस। तो यहाँ पे मैंने 0001 सिलेक्ट किया, एंटर किया एंड आई कैन सेव इट, पोस्ट इट। So when it is posted, the physical inventory difference will be posted. Save it. The physical inventory difference is posted and a material document number is generated. This is the material document number. तो यहाँ पे material document भी होगा, accounting document भी generate होगा. Now we will first display this document in MI03. MI03 is display physical inventory document, display it. Now go to header data. You can see here posting date. तो जिस दिन हमने डिफरेंस पोस्ट किया वो डेट यहाँ पे अपडेट होगा। एडजस्टमेंट स्टेटस इज आल्सो फ्लैग्ड एज एक्स, क्योंकि हमने इसका डिफरेंस पोस्ट किया। Now go to overview again, select the line, go to physical inventory history, and you can see
posting date is updated here, status is changed, counted, adjusted, count भी हुआ और inventory adjust भी हुआ. So when you post the difference, the status is updated to counted, adjusted. ठीक है, तो ये आप चेक कर सकते हो. ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि कौन से डॉक्यूमेंट पे उसका स्टेटस क्या होता है. तो फिजिकल इन्वेंटरी जब हम सिर्फ क्रिएट करते हैं, काउंट एंटर नहीं किया है, डॉक्यूमेंट पोस्ट नहीं किया है, तो उसका स्टेटस है नॉट एट काउंटेड. काउंट हमने एंटर किया तो उसका स्टेटस हो जाता है काउंटेड, और अगर हमने डिफरेंस पोस्ट किया तो उसका स्टेटस चेंज हो जाता है काउंटेड एंड एडजस्टेड, काउंटेड एडजस्टेड. नाउ सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते हो क्वांटिटी 730, 750 बुक क्वांटिटी का था, डिफरेंस क्वांटिटी 20 था, और डिफरेंस जो हमने पोस्ट किया वो 3907. नाउ इफ यू क्लिक ऑन डिस्प्ले मटेरियल डॉक्यूमेंट, अच्छा ये यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, सो वी कैन डिस्प्ले दिस डॉक्यूमेंट नंबर इन MIGO, MIGO, select display here, and you can see the document number is copied, 2 all zeros 350. This is the physical material document that is generated. Material document क्यों generate हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पे एक मूवमेंट पोस्ट किया 701. ठीक है. नाउ इफ यू सी हियर, मटेरियल है यहाँ पे, क्वांटिटी है यहाँ पे 20, उसका अमाउंट कितना हुआ ये भी हमको यहाँ पे दिख रहा है. वेयर यू कैन सी द मूवमेंट टाइप. तो मूवमेंट टाइप दैट इज सेलेक्टेड व्हेन इट इज लॉस इज 702. ठीक है, हमने वहां पे 701 का रीजन लिया था, बट सिस्टम ने वहां पे 702 पोस्ट किया. अगेन देयर इज सम इशू हियर, क्योंकि 701 उसने लेना ही नहीं चाहिए था, तो उसने लिया 701 बट पोस्ट किया 702. बट नो वरीज. So when it is loss from the physical inventory process, the movement type is 702, and when it is gain, मतलब quantity का count अगर ज्यादा आता है तो movement type that we should select is 701. ठीक है. Now, तो 702 movement type यहाँ पे post हुआ and it is minus, तो इसमें लॉस हुआ, तो सिस्टम का क्वांटिटी हमको रिड्यूस करना पड़ा, उसका वैल्यू हमको पोस्ट करना पड़ा. ठीक है. नाउ इफ यू चेक द स्टॉक क्वांटिटीज अवेलेबल इन स्टॉक, गो टू MMB एंड रिफ्रेश इट. तो यहाँ पे क्या होगा, 750 की जगह अभी ये 730 होगा, बिकॉज when we post the difference, when we accept and post the difference, the quantities are adjusted to physical quantity. फिजिकली 730 मिला तो सिस्टम का स्टॉक भी 730 ही होगा. रिफ्रेश इट and you can see the quantities are updated as 730. now मेरा सिस्टम का स्टॉक 730 है और फिजिकली मैंने जो काउंट किया था वो भी 730 है. my stock is in sync now. and if you see the accounting entries, go to document info, FI documents, accounting document is generated, क्योंकि क्वांटिटी और वैल्यू दोनों का चेंज यहाँ पे आ रहा है. and you can see this is your stock account, inventory raw material BSX की, तो स्टॉक अकाउंट से वैल्यू माइनस हो गया 3901.60 माइनस, स्टॉक अकाउंट से वैल्यू माइनस हुआ, स्टॉक अकाउंट को क्रेडिट हुआ, और डेबिट कहाँ पे हुआ, इन्वेंट्री चेंज. तो इसका डिस्क्रिप्शन जो है GL अकाउंट का, लॉस फ्रॉम फिजिकल इन्वेंट्री भी हो सकता है, या इन्वेंट्री टेकिंग भी हो सकता है, या इन्वेंट्री चेंज भी हो सकता है. तो इट डिपेंड्स कि डिस्क्रिप्शन क्या है, बट द की दैट इज पोस्टेड इज GBB. ठीक है. और ये GL अकाउंट कहां से आएगा, OBYC में, GBB में, चार्ट ऑफ अकाउंट INT1. तो इसका अकाउंट ग्रुपिंग के कोड क्या होगा, INV 892000 इज द GL अकाउंट.
ठीक है, तो इन्वेंट्री डिफरेंस के लिए पोस्ट करना है तो INV is the account grouping code that is used. Any doubt, any question? Whenever there is a difference in physical count, so some material movement is going to be associated with that. Because we have to choose a reason, right? Sorry? Whenever Whenever there there is is some difference in physical count and the actual quantity, in system quantity and actual quantity, so some moment type will be there, of course. Yes, either it can be 701 or 702, and we can have multiple reasons configured for 702 as well as 701. Okay. ठीक है, तो We अगर cannot लॉस हो keep रहा है that तो difference as it is. 702, करेक्ट, Yeah. लॉस हो रहा है तो 702 मूवमेंट टाइप, गेन हो रहा है तो 701 मूवमेंट टाइप. Movement type will Is be the same, difference? but Yeah. different reasons can be configured. Okay. So जो this means reasons that we configure, have to settle down the difference. We cannot keep it as it is. We have to correct, adjust it. Yeah. correct. So end of the physical inventory process will be posting the difference. You have to accept the difference. Yes. Now, material management, inventory management, movement types, and here you can see record reasons for goods movement. तो यहाँ पे हम reasons को define करते हैं and movement type को assign करते हैं. So if you go to reasons, we can see here movement type 701 and 702. तो यहाँ पे 70 के लिए ये reasons maintain किए हैं, stolen, hidden, theft. 702 gain के reasons, जो भी reasons उनको record करने हैं, you can have multiple reasons here and those reasons can be assigned to movement type. और ये movement type पे mandatory किया जाता है, कहाँ पे? control reasons पे. So यहाँ पे हम देख सकते हैं movement type 702 हो या 701, यहाँ पे field is suppressed. Again, this is a wrong configuration. तो ये जो है मैंडेटरी होता है. So when you are posting the difference, the entry in this field is mandatory. You need to select a movement type, you need to select a reason. तो वहां पे क्या था, वहां पे हमने डाला बट सिस्टम ने, हमने 701 सिलेक्ट किया था, सिस्टम ने 702 सिलेक्ट किया था. मे बी there is one more setting based on transaction code MIGO and in OMJJ, that is movement type configuration. तो जहां पे हमने देखा था फील्ड सिलेक्शन में, तो अगर फील्ड सिलेक्शन में कॉन्फ्लिक्ट है तो उसका वो रिजल्ट था. नाउ हियर यू कैन डिफाइन द रीजंस एंड यू कैन मेक दिस फील्ड एज मैंडेटरी एंट्री, बिकॉज रीजंस जो है वो मैंडेटरी फिजिकल इन्वेंटरी में हमको पोस्ट करने होते, तो मैंने इसको अभी मैंडेटरी. नाउ वी विल सी अ एग्जांपल विथ gain, physical inventory gain. Now we will create physical inventory document again, copy this material, go back, MI01, enter, same material I am entering, save it. डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ, डिस्प्ले करते हैं. हेडर में ये चीजें हैं, फिजिकल इन्वेंटरी का हिस्ट्री चेक करो, नॉट एट काउंटेड इज द स्टेटस. ठीक है, नाउ वी विल एंटर द काउंट. अभी कितना क्वांटिटीज है, अभी है मेरे पास 730 क्वांटिटीज. ठीक है, मान लो मैंने काउंट किया और मुझे मिला 750, MI04, एंटर काउंट, काउंट मिला मुझे 750. नाउ वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ गेन ऑफ 20 क्वांटिटीज. ठीक है, क्योंकि सिस्टम का स्टॉक 730 है बट हमको फिजिकली मिला 750. मैंने 750 का काउंट एंटर किया, सेव किया, डिस्प्ले द काउंट, सिलेक्ट लाइन, गो टू फिजिकल इन्वेंटरी हिस्ट्री,
status is updated to counted, book quantity 730 system का stock, हमने count किया 750 and difference quantity is 20 and it is plus, so it's a gain from physical inventory. Now go to post the difference, but before we go to post the difference, MM03 let us display the material master, plant storage location data, GP1 storage location 1000, plant storage location 2 and stock, यहाँ पे physical inventory block होता है, ठीक है. So in plant stock data we can see this indicator is updated here, A. तो एक स्टेटस अपडेट होता है यहाँ पे मटेरियल मास्टर में, फिजिकल इन्वेंटरी नॉट एट कंप्लीटेड फॉर दिस मटेरियल. दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शो. नाउ आगे जब हम क्या बोलते हैं उसको, बुक फ्रीजिंग, और एक ऑप्शन है जो फिजिकल इन्वेंटरी डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय हमने देखा था, जिसमें क्या ऑप्शन है, वी विल डिस्कस इट इन सम टाइम. ओके, सो ये स्टेटस जो है यहाँ पे स्टॉक इसमें अपडेट होता है, दैट आई वांटेड टू शो इन मटेरियल मास्टर रिकॉर्ड. नाउ वी विल पोस्ट द डिफरेंस MI07, enter. Now here you can see the reason is now mandatory field. Select here. Now this is gain. So gain अगर है तो 701 का मूवमेंट टाइप हमको सिलेक्ट करना है. Enter and post it. क्या हुआ, डिफरेंस एक्सेप्ट किया, मटेरियल डॉक्यूमेंट जनरेट हुआ. कॉपी द मटेरियल डॉक्यूमेंट नंबर, फर्स्ट डिस्प्ले द फिजिकल इन्वेंटरी डॉक्यूमेंट, द हिस्ट्री, 20 का डिफरेंस यहाँ पे पोस्ट हुआ, इतना अमाउंट पोस्ट हुआ, ठीक है. काउंटेड एडजस्टेड स्टेटस हुआ. नाउ लेट अस चेक द स्टॉक. स्टॉक यहाँ पे 750 होगा क्योंकि 20 क्वांटिटी एक्स्ट्रा मिला, तो 750 का स्टॉक अपडेट हुआ. लेट्स गो टू मीगो, check the material and accounting document both, display document number यहाँ पे 51, ठीक है. 701 मूवमेंट यहाँ पे आया, मूवमेंट टाइप 701. यू गो टू FI डॉक्यूमेंट्स. अभी स्टॉक अकाउंट में वैल्यू प्लस हुआ, क्योंकि स्टॉक में क्वांटिटी इंक्रीज होगा तो स्टॉक में वैल्यू इंक्रीज होगा. तो स्टॉक अकाउंट में डेबिट हुआ और इन्वेंट्री, फिजिकल इन्वेंट्री गेन का जो अकाउंट है उसमें इतना वैल्यू माइनस हो. And you can see here posting period is 7 and posting date is this, company code fiscal year is 2023. तो ये जो है planned count date से सिस्टम ले लेता है. Clear? Understood? Any doubts? Any questions? Clear. ठीक है, तो ये हमने देखा, लॉस देखा, गेन देखा. नाउ वी विल सी रिकाउंट. रिकाउंट का क्या सीन है. सो फर्स्ट स्टेप में हमने देखा कि फिजिकल इन्वेंटरी डॉक्यूमेंट को हमने क्रिएट किया. सेकेंड स्टेप में हमने काउंट को एंटर किया, एंटर काउंट. काउंट करने के बाद बहुत ज्यादा डिफरेंस है, अनएक्सपेक्टेड डिफरेंस आया, एंड यू आर नॉट श्योर कि ऐसा, यू आर श्योर कि ऐसा नहीं हो सकता, इतना डिफरेंस नहीं आ सकता. सो द इन्वेंटरी मैनेजर डिसाइड्स टू गो फॉर रीकाउंट. उसको वापस काउंट करना, ठीक है. तो जब रीकाउंट डिसाइड होता है तो रीकाउंट के लिए ऐसा नहीं होता कि आपने काउंट एंटर किया और रीकाउंट लेना है तो इमीडिएटली आपने उसको स्टोरेज लोकेशन में भेजा, वापस काउंट करने के लिए बोला. दैट मे बी अ थिंग, ठीक है. काउंट किया, काउंट देखा, अरे यार ये तो बहुत आ रहा है, वापस उसने काउंट किया, दैट इज वन थिंग. सिस्टम में अगर रीकाउंट करना है तो
उसके लिए एक नया फिजिकल इन्वेंटरी डॉक्यूमेंट जनरेट होता है। सो काउंट एंटर करने के बाद अगर किसी पर्टिकुलर मटेरियल को आपको रिकाउंट करना है, बिकॉज यहाँ पे जैसे हमने फिजिकल इन्वेंटरी डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय मैंने यहाँ पे 15 मटेरियल डाले, सपोज 15 मटेरियल्स मैंने यहाँ पे एंटर किए, बट ये हो सकता है कि एक ही मटेरियल में इशू है, बराबर, एक ही मटेरियल की क्वांटिटी में ज्यादा डिफरेंस है और वही मुझे रिकाउंट करना है, तो मैं सारे मटेरियल्स को तो रिकाउंट के लिए नहीं भेज सकता, एक ही मटेरियल को मुझे रिकाउंट करना है। तो रिकाउंट का एक प्रोसेस है। व्हाट इज दैट प्रोसेस? सो जो भी मटेरियल को आपको रिकाउंट करना है उसको हम क्या करते हैं, फिर फिजिकल इन्वेंटरी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करेंगे, काउंट एंटर करने के बाद रिकाउंट होता है। तो देयर इज अ सेपरेट ट्रांजैक्शन कोड फॉर रिकाउंट। ट्रांजैक्शन कोड इज MI11 recount. For posted material also we can do recount No, before posting we need to do the recount. before posting. Before adjusting. Adjust करने के बाद recount करने का क्या मतलब है? बराबर। ठीक है। So before the difference is posted, if you see for particular material there is the difference is beyond our tolerance limit or it is not as per our expectation, then you decide to go for a recount. So the transaction code for that is MI11. तो MI11 में जाके हम recount enter करते हैं. So when we enter MI11, we give the reference of this original physical inventory document. और उसमें से कौन से मटेरियल का हमको रिकाउंट करना है वो हम सिलेक्ट करते हैं एंड वी सेव इट. सो व्हेन वी सेव इट, what system does is system creates a new physical inventory document number, creates new physical inventory document. तो ओल्ड फिजिकल इन्वेंटरी डॉक्यूमेंट नंबर जो था ये वाला जिसका हमने रेफरेंस देके रिकाउंट पोस्ट किया, उसमें स्टेटस क्या अपडेट होता है? तो उसमें उस मटेरियल के लिए जो है स्टेटस अपडेट होता है काउंटेड रिकाउंटेड. काउंटेड रिकाउंटेड करके इसका स्टेटस अपडेट किया जाता है. उसमें नए डॉक्यूमेंट का रेफरेंस दिया जाता है, जो नया फिजिकल इन्वेंटरी डॉक्यूमेंट जनरेट हुआ एज अ रिजल्ट ऑफ रिकाउंट, that is noted in the old physical inventory document, and you carry out the physical inventory against the new physical inventory document. तो इसके बाद आप फिर से काउंट एंटर करोगे and you will enter the difference. Clear? Yes, sir. Now let us do it. तो अभी मैं यहाँ पे दो मटेरियल ले लेता हूँ, दोनों का फिजिकल इन्वेंटरी अपन करते हैं. MM60 254 and 256, these two materials I will select. MI01, ठीक है, एंटर. ना यहाँ पे मैंने दो मटेरियल डाले, दोनों का भी अनरेस्ट्रिक्टेड यूज स्टॉक में हम फिजिकल इन्वेंटरी प्रोसेस कैरी आउट करें. 254 इज नॉट देयर इन AGP1, बट मैंने तो प्लांट AGP1 ही सिलेक्ट किया है. तो स्टोरेज लोकेशन में एक्सटेंडेड नहीं होगा. That's the reason. नहीं है, ठीक है, उस स्टोरेज लोकेशन में उस मटेरियल का स्टॉक नहीं है. एक मिनट वापस जाते हैं. एग्जीक्यूटेड SL01 में, ठीक है, वहां पे स्टोरेज लोकेशन
है ही नहीं हो तो SL01 इज द स्टोरेज लोकेशन फॉर दिस मटेरियल 254। दूसरा मटेरियल हम 256 ले रहे हैं, AgP2 में होगा शायद वो MMPE। AgP2 SL01, ठीक है। तो AgP2 प्लांट में हम इसको काउंट करते हैं। नाउ आई विल गो टू, नहीं सॉरी, प्लांट्स अलग है ना, ये AgP1 SL01 है, AgP2 है, तो आपको AgP 1000 2000 3000 यहीं से फिल्टर करते हैं इसको। प्लांट AgP1 है MB52 I will use। तो MB52 is a report where you can see the stock quantities, कहाँ पे कितना quantities है मटेरियल का, ठीक है। तो मैं AgP2 ले लेता हूँ यहाँ, क्योंकि एक ही प्लांट एक ही स्टोरेज लोकेशन में दोनों मटेरियल मुझे देखने, किसमें स्टॉक है वो। नो स्टॉक्स एग्जिस्ट फॉर स्पेसिफाइड डेटा AgP1, ऐसे कैसे हो सकता है। टू 56,000 2000 तो ये वर्क नहीं कर रहा है। इसमें स्टोरेज लोकेशन 1000 2000 3000 है, इसमें SL0 मटेरियल। मैं काम करता हूँ, कॉपी दिस मटेरियल 1000 है ना, ठीक है। आई गो टू मीगो, आई generate the stock in storage location 1000 for this material 561 AG। कितना क्वांटिटी करेंगे AgP1 1000 ठीक है। अभी 1000 में मेरे पास 500 क्वांटिटीज आ गया। नाउ वी कैन क्रिएट द फिजिकल इन्वेंटरी डॉक्यूमेंट। स्टोरेज लोकेशन कौन से प्लान AgP1 में लिया ना हमने, ले लिए दोनों। सेव इट, डिस्प्ले द फिजिकल इन्वेंटरी डॉक्यूमेंट, ठीक है। दोनों मटेरियल्स अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं। गो टू फिजिकल इन्वेंटरी स्टेटस ऑफ ईच लाइन आइटम, नॉट एट काउंटेड, पहले का दूसरे का भी नॉट एट काउंटेड।
Go back. Now we will enter the count MI04 256 256 का स्टॉक कितना है? 256 का स्टॉक है 750, हमको मिला सपोज 740, 10 क्वांटिटी का डिफरेंस। 254 का स्टॉक क्या है? 254 है 500, हमको मिला सपोज 400, 100 क्वांटिटी का डिफरेंस। ठीक है, नाउ आई विल सेव दिस, डिस्प्ले द काउंट, चेक द फिजिकल इन्वेंटरी हिस्ट्री, काउंटेड, दोनों का भी स्टेटस अभी काउंटेड होगा। ठीक है, क्वांटिटीज रिकॉर्ड होगी, यहाँ पे 100 क्वांटिटी का डिफरेंस है सेकेंड लाइन आइटम में, और फर्स्ट लाइन आइटम में 10 क्वांटिटीज का डिफरेंस है। ठीक है, नाउ एक में 10 क्वांटिटी का डिफरेंस है, दूसरे में 100 क्वांटिटी का डिफरेंस है। सो वी डिसाइडेड टू गो फॉर अ रीकाउंट फॉर द सेकेंड लाइन आइटम। जो 100 क्वांटिटी का डिफरेंस है उसके लिए हमने रीकाउंट सिलेक्ट किया, बट जो फर्स्ट लाइन है उसको हम रीकाउंट नहीं करेंगे, उसका डिफरेंस हम एक्सेप्ट करेंगे बिकॉज द डिफरेंस इज 10 quantities only. Now we can go to MI07। एक लाइन आइटम का हमको एक्सेप्ट करना है, दूसरे का हमको रिकाउंट हो जाना है। सो जिसका हमको डिफरेंस पोस्ट करना है, फॉर दैट ओनली वी विल सिलेक्ट हियर। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको अनसिलेक्ट किया, मतलब इसका मैं डिफरेंस नहीं पोस्ट करना चाहता हूँ, मैं इसका डिफरेंस पोस्ट करना चाहता हूँ। सो आई कैन सिलेक्ट हियर 701 मूवमेंट टाइप एंड आई कैन पोस्ट दैट लॉस। ठीक है, और मैं इसका डिफरेंस नहीं पोस्ट करूंगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? क्लियर। ठीक है, तो मैं इसका डिफरेंस पोस्ट करूंगा, इसका नहीं करूंगा। दैट इज वन थिंग, वी कैन पोस्ट द डिफरेंस इन MI07 और देयर इज वन मोर ट्रांजैक्शन कोड MI20, लिस्ट ऑफ इन्वेंट्री डिफरेंसेस। फिजिकल इन्वेंट्री डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे डाला हुआ है, एग्जीक्यूटेड, एंड हियर यू कैन सी बोथ द लाइन आइटम्स इन द सेम डॉक्यूमेंट। और यहाँ पे हमको क्वांटिटी भी दिखेगा, डिफरेंस भी दिखेगा। सो डिफरेंस के लिए MI07 का भी यूज किया जा सकता है या MI20 का भी यूज किया जा सकता है। नाउ ये जो फर्स्ट लाइन आइटम है जिसका 10 क्वांटिटी का डिफरेंस है, मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ एंड आई कैन गो टू पोस्ट डिफरेंस। ठीक है, तो अगेन देखो ये वहाँ यहाँ पे हमको कहाँ पे लेके आया, MI07 में ही लेके आया, जहाँ पे ये ग्रेड आउट है, मतलब इसका डिफरेंस हम नहीं पोस्ट करें, सिर्फ इसका डिफरेंस हम पोस्ट करें। तो यहाँ पे मैंने रीजन सिलेक्ट किया, लॉस है 702 है ना, लॉस का मोमेंट टाइप क्या है, मोमेंट टाइप फॉर लॉस, वेयर इज, कहाँ पे लिखा था हमने, लॉस है तो 702, गेन है तो 701। तो लॉस के लिए मैंने 702 लिया, एंटर किया, मैंने डिफरेंस पोस्ट किया। ठीक है, डिफरेंस इज पोस्टेड। नाउ इफ यू सी 256 का हमने डिफरेंस पोस्ट किया, तो इसमें 10 क्वांटिटी का डिफरेंस एडजस्ट होगा, यहाँ पे 740 होगा, 740 हो गया। दूसरा जो था उसका हमने डिफरेंस पोस्ट नहीं किया, वी कैन स्टिल रिफ्रेश द स्टॉक क्वांटिटीज, हमको यहाँ पे अभी 500 ही दिखेगा। नाउ वी विल डिस्प्ले द फिजिकल इन्वेंटरी डॉक्यूमेंट इन MI03, और यहाँ पे हमको क्या दिखेगा, फर्स्ट लाइन आइटम का जो हिस्ट्री है उसमें हमको दिख रहा है काउंटेड एडजस्टेड, डिफरेंस 10 क्वांटिटी का एडजस्ट हुआ। सेकेंड लाइन आइटम का जो है अभी भी स्टेटस काउंटेड ही है। नाउ वी वांट टू गो फॉर अ रीकाउंट, गो बैक MI11, एंटर रीकाउंट, और यहाँ पे रेफरेंस किसका दिया हमने, द ओल्ड फिजिकल इन्वेंट्री डॉक्यूमेंट 10021, एंटर। नाउ ये ग्रेड आउट है बिकॉज इट इज ऑलरेडी एडजस्टेड। ठीक है, और इसको सिस्टम ने सिलेक्ट किया फॉर द रिकाउंट। क्लियर,
अगर ज्यादा होते यहाँ पे, और अगर हमने इस पहले लाइन आइटम का अगर हमने डिफरेंस पोस्ट नहीं भी किया होता, एक मिनट, ठीक है। तो हमने इसको रिकाउंट के लिए सिलेक्ट किया। नाउ यू कैन सेव इट एंड यू कैन सी a new physical inventory document 10022 is created। ठीक है, नया फिजिकल इन्वेंटरी डॉक्यूमेंट नंबर क्रिएट किया सिस्टम ने, एंड सो न्यू डॉक्यूमेंट इज क्रिएटेड इन केस ऑफ रिकाउंट। ये नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ, जो ओल्ड था वो था 21। क्लियर है? ठीक है, ये नया क्रिएट किया। नाउ वी विल फर्स्ट सी डिस्प्ले दी फर्स्ट डॉक्यूमेंट MI03 21 को हम यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं। तो इसका स्टेटस सेकेंड लाइन का हमको चेक करना है। पहले का क्या है, ऑलरेडी काउंटेड एडजस्टेड है क्योंकि उसका डिफरेंस हमने पोस्ट किया था। सेकेंड लाइन आइटम का जो डिफरेंस है, सॉरी सेकेंड लाइन आइटम का जो हिस्ट्री है, दैट वी कैन चेक हियर एंड यू कैन सी काउंटेड रिकाउंटेड इज द स्टेटस। तो जब हम रिकाउंट करने जाते हैं फिजिकल इन्वेंट्री का, तो उसका जो स्टेटस अपडेट होता है दैट इज काउंटेड रिकाउंटेड इन द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। क्लियर? Clear. Now go to overview again. Counted, recounted. Go back. Select this. यहाँ पे तो कुछ नहीं है। Now we will go to the new document and display the new document that is created. Go to its history. Again the status is not counted क्योंकि हमने काउंट नहीं किया है, ये न्यू डॉक्यूमेंट जनरेट हुआ है। Go back, select it, go to header data and इसका आप डॉक्यूमेंट टाइप देख सकते हो IN। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का IV था, इसका IN है। तो रिकाउंट के लिए अलग डॉक्यूमेंट टाइप का हम यूज कर सकते हैं और उसके लिए अलग नंबर रेंज का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, वी विल सी दिस इन कॉन्फ़िगरेशन टॉपिक। ओके, चीज यहाँ पे ओल्ड फिजिकल इन्वेंटरी डॉक्यूमेंट का नंबर जो है वो रिकॉर्ड होता है कहाँ? हाँ, यहाँ पे देखो। सो इन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दैट इज 21, द न्यू डॉक्यूमेंट इज रिकॉर्डेड रिकाउंट डॉक्यूमेंट। रिकाउंटिंग के लिए कौन सा फिजिकल इन्वेंटरी डॉक्यूमेंट जनरेट हुआ उसका नंबर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे रिकॉर्ड होता है। ठीक है, सो दैट कोई अगर इसको डिस्प्ले करके देखे तो यहाँ पे स्टेटस क्या है, काउंटेड रिकाउंटेड। सो व्हाट इज द रिकाउंटेड डॉक्यूमेंट नंबर दैट यू कैन सी हियर 10022। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस इज सेम, you go enter, you take the count again,
go to MI04. Against this new document you enter the count, 520 मिला आपको, ठीक है, सेव किया, डिस्प्ले करो, फिर इसका स्टेटस अपडेट होगा काउंटेड, एंड फिर आप इसका डिफरेंस जो है पोस्ट कर सकते हैं MI07 या MI20 कहीं से, रीजन सिलेक्ट करो और डिफरेंस को पोस्ट। क्लियर? क्लियर। Yes, sir. ओके